پاکستانی فورسز پر حملے اور شہروں میں دھماکے بھی ہونے لگے تھے جنہیں انگریزوں کے زمانے سے آزاد اور خود مختار حیثیت میں رکھا گیا تھا۔ اس کا ایک زندہ مثال ابھی نندن کی شکل میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ پاکستان کی جدید طیارے بہت اہمیت کے حامل۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا انتہا پسند یا دہشت گرد پاکستان کو ختم کر سکتے ہیں، یعنی پاکستان کو کمزور کر سکتے ہیں؟ پاکستان کو پچھلے کئی دہائیوں میں سب سے بڑا چیلنج اندرونی دہشت گردی کی صورت میں ملا ہے۔ اب بھی بلوچستان میں بہت سے مسائل ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، دہشت گردی کے کئی حملے ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ریلوے گاڑی کو بھی روکا گیا ہے۔ Simple and clear message to China and Pakistan. Baloch Liberation Army guarantees you that you will never forget. ان حملوں میں پاکستانی فوج اور ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ کچھ بیرونی ممالک ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ پیسہ دے رہے ہیں۔ لوگوں کے ناانصافی اور مذہبی نام پر ان سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یعنی مائنڈ واش کیا جا رہا ہے تاکہ وہ پاکستان کے خلاف ہو جائے۔ نین 11 کے بعد شمالی علاقوں اور خاص طور پر پاکستان کے وزیرستان میں تحریک طالبان پاکستان ایک طاقتور شکل اختیار کرنے لگی تھی۔ پاکستانی فورسز پر حملے اور شہروں میں دھماکے بھی ہونے لگے تھے۔ دہشت گردی میں شیعہ سنی پروکسی جنگ فورسز کے خلاف امریکہ مخالف جذبات۔ The Pakistani military say they have region last month after the winter rains. Fountainhead of terrorism for Pakistan. اور اسلامی انقلاب کے کچھ جگہوں پر نعرے اور بیرونی ایجنسیز کے کرائے کے قاتل یہ سب متحرک ہو گئے، لیکن ان سب کے اوپر ایک مصنوعی پردہ تھا کہ جیسے یہ سب کچھ مذہب کے نام پر کیا جا رہا ہے، لیکن اے دوستو ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ پاکستانی ریاست اور خاص طور پر فوج کے ادارے کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال تھی۔ ان دہشت گردوں کو زیادہ تر پاک اکوان بارڈر وزیرستان کے کچھ پہاڑی علاقوں میں پناہ ملتی تھی۔ ان مشکل ترین صورتحال میں مزید مشکل تب آئی جب ان علاقوں میں آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جولائی 2002 میں پاکستانی فوج آزادی کے بعد پہلی بار قبائلی علاقوں میں داخل ہوئی۔ یہ مشکل ترین فیصلہ تھا کیونکہ یہ وہ علاقے تھے جنہیں انگریزوں کے زمانے سے آزاد اور خود مختار حیثیت میں رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ کسی بھی بیرونی مداخلت کو حملہ مان لیتے تھے، اسی لیے اسی جگہ پر موجود دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں تاخیر ہوئی، لیکن بعد میں اس علاقے کے لوگوں نے فوج کے ساتھ تعاون کی اور پاکستان نے ایک دہائی میں یہ مشکل ترین جنگ جیت لی۔ ان علاقوں میں موجود انتہا پسندوں کو گرفتار بھی کیا، دہشت گردوں کو نشانہ بھی بنایا اور مقامی لوگوں کو پرامن زندگی کی طرف لوٹایا ہے۔ ماہرین کی نظر میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے پاس ایک طاقتور اور اعلیٰ تربیت یافتہ فوج موجود ہے اور اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان کسی سے پیچھے نہیں گیا۔ اس کا ایک زندہ مثال ابھی نندن کی شکل میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ میرا نام ونگ کمانڈر ابھینندن ہے، میں بھارتی وایو سینا میں ایک لڑاکو ومان چالک ہوں۔ میں ٹارگٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل چکے ہیں۔ پاکستان کی جدید طیارے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان سے اتنا بڑا ملک بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے۔ لیکن انتہا پسندی کے خلاف اس مشکل جنگ میں پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ وہ دنیا کی مشکل ترین جنگ جیت سکتا ہے، اور وہ بھی اپنے دم پر۔ حالانکہ یہی چیلنج شام، افغانستان، لیبیا، فلسطین میں بھی پیش آیا تھا۔ جب آیا تو بیرونی ملکوں کے آرمی کو مداخلت کرنا پڑی، لیکن پھر بھی ان فوج کی مداخلت کے باوجود بھی آج تک کچھ ملکوں میں امن قائم نہیں ہو سکا۔ اسی لیے پاکستان نے ثابت کیا کہ پاکستان کو کوئی ایجنسی یا دہشت گردی کی لہر ختم نہیں کر سکتی۔ کیا پاکستان 1971 کی طرح دوبارہ ٹوٹ سکتا ہے؟ یہ نہیں کہ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، شاید یہ ثانیہ ایک ہی نہ ایک دن ہونا ہی تھا۔ وہ یوں کہ پاکستان سے وہ بہت دور تھا، درمیان میں انڈیا ہے اور اس کے علاوہ ان کا زبان بھی مختلف ہے اور ان کا کلچر بھی ہم سے مختلف ہے، اور پھر جہاں فاصلے ہو وہاں غلط فہمیاں تو بے شمار ہوتی ہیں، اور پھر جب ہوا دینے والے ہوں تو غلط فہمیاں دشمنی بھی بدلا کرتے ہیں۔ لیکن کیا ایسا دوبارہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ بنگال تاریخ اور فطری طور پر دریائے سندھ والی تہذیب کا حصہ کبھی تھا ہی نہیں، یعنی ہمارے کلچر کے حصے میں سے کبھی تھا ہی نہیں۔ پاکستان مشرقی پاکستان کے ساتھ 24 سال سے زیادہ رہا، لیکن اب دنیا میں ایسی کوئی طاقت نظر نہیں آتی جو پاکستان کو 71 کی طرح دوبارہ دو ٹکڑے کر سکے۔ اب پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام سرحد سے اسلام آباد تک ایک ہی طاقت رکھتے ہیں اور خاموشی سے دشمن کا شکار کرتے ہیں۔
दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि भारत से बहुत छोटा मुल्क और बहुत कम आबादी होने के बावजूद पाकिस्तान कई बार ग्रोथ रेट में भारत को पीछे छोड़ चुका है। पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वालों की तादाद आज भी दुनिया के कई ममालिक से बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान में वो गुर्बत न होने के बराबर है। वो यूं कि पाकिस्तान में आज भी लोग भूख से नहीं मरते, जो दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं लोग भूख से मर जाते हैं, कम खुराक होने की वजह से कमजोर होते होते मर जाते हैं। पाकिस्तान में भूख से कोई खुदकुशी नहीं करता, यही वजह है कि इस खित्ते में इनकलाब भी नहीं आते। पाकिस्तान का सोशल फाइबर ऐसा है कि यहाँ फलाही तंजीमें और मजहबी जमातें कभी भी किसी भी इलाके को या बड़ी तादाद में लोगों को आफत जैसे हालात में जाने से बचा लेते हैं। और हाँ, पाकिस्तान में करप्शन भी है। पाकिस्तान के अलावा और भी बहुत से ममालिक इस चीज में झुलस रहे हैं। बहुत से कौमी फायदे के मंसूबे इसकी वजह से नहीं होते, लेकिन उसे ऐसे एक और एंगल से भी देखें कि जब रियासत पाकिस्तान किसी मंसूबे को तकमील तक ले जाना चाहती है तो वो कर लेती है। तमाम रुकावटें माशी बदहालियाँ और करप्शन के बावजूद मुकम्मल करके दिखाती है, जबकि माजी में पाकिस्तान को मिलाने वाली मोटरवेज, एटमी और मिसाइल पावर्स और तरबेला डैम ये अजीम और आलीशान मंसूबे हैं। ये जब भी पाकिस्तानी रियासत ने किसी मंसूबे को मुकम्मल करने का तय कर लिया तो वो मुकम्मल होकर रहा, यानी मसला करप्शन का नहीं। 1971 से पहले पाकिस्तान जिस माशी पॉलिसी पर गमजन था उसे जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में बदल दिया गया, जिसमें सबसे अहम तब्दीली ये थी कि तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया गया। लेकिन ये तब्दीली पाकिस्तान की माशत के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। सबसे पहले तो ये हुआ कि इन्वेस्टर्स ने पैसा बहर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। प्राइवेट और इन्वेस्टमेंट इतनी कम हो गई कि हुकूमत के लिए नौजवानों को नौकरियां देना भी यानी नामुमकिन हो गया था। 1974 से लेकर 1977 तक इकॉनमी बिल्कुल बेहाल हो गया और एवरेज ग्रोथ 2.8 तक आ गया, यानी बहुत ही कम। महरीन के मुताबिक अगर पाकिस्तान में एक मुतफक्का पॉलिसी बन जाए, यानी खवातीन को माशी तरक्की में शामिल कर लिया जाए, तो पाकिस्तान की माशियत बहुत ज्यादा मजबूत और यूरोपियन कंट्री के मुकाबले तक भी हो सकता है। याद रहे कि पाकिस्तान ने 90 की दिहाई में जब अमेरिका ने हम पर एटमी प्रोग्राम बंद करवाने के लिए माशी पाबंदियां लगा रखी थी, इस वक्त भी पाकिस्तान ने माशी तौर पर सर्वाइव किया। और जब अमेरिका ने पाबंदियां खत्म की तो पाकिस्तान एक बार फिर 8.6% के ग्रोथ रेट तक पहुंच गया। क्या पाकिस्तान इतना ही बुरा है जितना मीडिया में दिखाया जाता है? चैनल्स के बारे में राय ये है कि ये पाकिस्तान की बुराई ज्यादा करते हैं और नेक नामी बहुत कम करते हैं। लेकिन सोचिए कि क्या किसी जगह चोरी चकारी, किसी सरकारी अस्पताल में दवाई ना मिलना, पुलिस स्टेशन में रिश्वत लेने के दावे और किसी बड़े वाक़ये को बड़ी बड़ी हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज के साथ चलाकर ये दिखाता है कि पाकिस्तान बहुत कमजोर और खराब मुल्क है? क्या मीडिया के मुख्तलिफ सेक्शन सिर्फ सियासतदानों को इम्प्रेस करने और शर्मिंदा करने के अलावा कुछ नहीं करते? ये सब है, लेकिन इसका एक फायदा भी है। वो शख्स जो किसी से ज्यादती करके कल छुप जाता था, अब कई दिन टीवी पर रिपोर्ट्स इसका पीछा करती है, या फिर हुक्मरान और मुतल्लिका सरकारी अफसर का पीछा करते हैं जिन्हें मुजरिम पकड़ना है। या एक तब्दीली है जो पाकिस्तान में रफ्ता रफ्ता पूरी सोसाइटी में आ रही है। क्या आलमी ताकतें पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं माशी या जोग्राफी तौर पर? तो हाँ, ऐसी बहुत सी साजिशें बातें दुनिया में और पाकिस्तान में भी मशहूर हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन भी है? ऐसा मुमकिन नहीं, मगर कैसे? वो इस तरह के दर हकीकत आलमी बिरादरी और आलमी ताकतें समझती हैं कि पाकिस्तान का क्लैप्स कर जाना माशी तौर पर, जोग्राफी तौर पर दुनिया के लिए एक ख्वाब है। यूं कि पहले ही दुनिया एक गैर मुस्तहकम डिसेंट्रलाइज्ड अफगानिस्तान से परेशान है। जिस तरह आप देख चुके हैं कि अब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल चुका है, लेकिन कई अरब डॉलर और कई जाने डुबा कर चला गया। तो पाकिस्तान यहाँ पर भी खुद को एक ताकतवर मुल्क साबित करता है कि अफगानिस्तान जैसे हमसाया मुल्क एक ऐसी सिचुएशन में हर वक्त जो दहशतगर्दी के शिकार में रहता है, लेकिन पाकिस्तान बहुत ही मजबूत मुल्क है उसके मुकाबले में। वो एक ऐसा खित्ता बन चुका है जिसकी जोग्राफी की अहमियत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ हुकूमत हर कुछ साल बाद गिर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ ऐसे अनासिर को पनाह लेने का मौका मिलता है जो आलमी ताकतों के मफादात के लिए खतरा बन जाते हैं, और फिर उनके मुकाबले के लिए इस बहाने अफगानिस्तान में एक आलमी ताकत आ जाती है। तो ऐसे में अफगानिस्तान के साथ ही वाक़ई रियासत पाकिस्तान आकर कमजोर हो जाते हैं। चीन, भारत और ईरान, यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट और अमेरिका के लिए भी खौफनाक मसाइल पैदा हो जाएंगे। यहाँ तक कि मशरक़ी वास्ते में ज़मीनी तिजारत और समंदरी रास्ते भी गैर महफूज हो जाएंगे। अमेरिका और चीन का मफाद इसी में है कि पाकिस्तान जैसे अहम तरीन मुल्क को डिसेंट्रलाइज होने से बचाया जाए और किसी भी ऐसे चैलेंज में पाकिस्तान की मदद की जाए जिसमें वो मुआशी या जोग्राफी तौर पर कोलैप्स कर सकता है। बल्कि चीन और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके दोस्त रहें। जोग्राफी अहमियत के इस खित्ते को वो अपने मफादात के खिलाफ
इस्तेमाल होने से रोक सके। इन दोनों बड़े मुल्कों की इस जरूरत को पाकिस्तान ऐसे फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है, अब ये पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सियासतदानों पे डिपेंड करता है। यहाँ जागीरदारी निज़ाम बहुत तगड़ा है। जागीरदारी और वडेरे अवामी वडेरों पर काबिज है, असम्बलियों में बैठे हैं और अवाम पर जुल्म ढहाने में पेश है। ये बात किसी हद तक सच है। 1950 के दिहाई के आखिर में अयूब खान और 1970 के दिहाई में भुट्टो की ज़राई असलाहियत की वजह से जागीरदारी बहुत कम हो गई है। जो जागीरदार है भी, उनकी ताकत उनकी ज़मीनों की वजह से नहीं बल्कि उनके खानदानों और कबीलों की वजह से है। असल में ये बिरादरी सिस्टम है जो सियासत को कंट्रोल करता है। पाकिस्तान के बारे में ये बात आम की जाती है कि ये बैकवर्ड है, पशमंदा है और उसके लोग मजहब के लिए बहुत जज्बाती हो जाते हैं। इसी बुनियाद पर मगरब में ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान एक इंतहा पसंद मुल्क है और उसके लोग हर वक्त एक कट्टर मजहबी इनकलाब के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन बातों में इतनी सच्चाई भी नहीं है जितना कि दिखाया जाता है। और अगर उन्हें नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तकसीम भी किया जाए तो वो सियासी निज़ाम से अपना हिस्सा वसूल करने के लिए इसमें शामिल हो जाते हैं। यानी इलेक्शन वगैरह लड़ने लगते हैं, असम्बलियों में पहुंचते हैं और पुरअमन तरीके से अपने मफादात हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये सारे फंडे हमारे हमसाया मुल्क भारत और बांग्लादेश जैसे मुल्क में भी होते हैं और इसके लिए आमतौर पर हथियार नहीं उठाते। यूँ पाकिस्तान का खानदानी निज़ाम, जिसमें यकीनन बहुत से मसाइल भी हैं, इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान एक मजबूत और सख्त जान है। पाकिस्तान को इतनी आसानी से कोई मुल्क या ताकत नहीं तोड़ सकता। जब पाकिस्तान की मफादात का मसला हो तो पूरा मुल्क एक हो जाता है। अगर कोई चीज़ पाकिस्तान को कोलैप्स कर सकती है, इसे ख़त्म कर सकती है, तो वो सिर्फ एक ही है और वो है क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली। इस तरह पाकिस्तान के इलाकों में ऐसी आफतें आती रहती हैं। आप देख चुके हैं कि जनूबी पंजाब और कई पाकिस्तान और शहरों में भी ऐसे मसाइल आ गए थे, जैसे कि समंदरों में पानी की सतह बहुत बुलंद हो जाए या दरिया सूख जाए या फिर जैसे कोरोना वायरस जैसी कोई वबा आ जाए। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर पाकिस्तान वो अकेला मुल्क नहीं होगा जो कोलैप्स करेगा या नुकसान में रहेगा, बल्कि बरे आज़म अफ्रीका और अरब जैसे बहुत से ममालिक सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। तो इंतहा ये पाकिस्तान का मसला नहीं, तो पाकिस्तान बहुत सख्त जान मुल्क है। जो लोग खाना जंगी की वजह से या बैरूनी साजिशों के नतीजे में पाकिस्तान का खात्मा देखना चाहते हैं, वो दरअसल एक ख्वाब को देख रहे हैं।